Good morning to all sirs. I am Kamal Gandhina under the guidance of Langivar sir, and I have been enrolled for a PhD course, and today I have selected one topic, my research topic, that is geography, tourism, and for this I have chosen Bihar as the case study. Sir, geographically, if I divide Bihar, then I can divide in three parts. One, the upper part is the plateau, a little bit that foothills of Himalayas, and the second part is northern plains of Bihar and the southern plains of Bihar. These are the major three divisions of Bihar in the aspect of geography. My concern is, my topic is tourism. What is the scope and potential of tourism in Bihar? Bihar is in the ancient time. It has its significant history in the older time, and in the cultural aspect, it is also very sound. And obviously, there is a huge scope of geographical tourism in that. If further I want to divide that, then the tourism can be identified in several aspects. That some places are very significant historically, and some are culturally very significant. Apart from this, geographically, obviously, environment of Bihar is also such that it appeals tourists to come and visit the place. Historical place, if I consider, then obviously enlightenment of Buddha. Obviously, the birthplace of the Gautam Buddha was now in Nepal area, and the Lumbini that comes under Nepal. But the enlightenment and the entire life where they spend most, that area comes under Bihar itself. So Bodh Gaya, there is a big temple, and now it has also been recognized by UNESCO. It is a UNESCO site. So this is a great attraction for the tourists. People are, especially the people those who are believing in Buddhism, and they must want to visit that place once in their life. Apart from that, other countries like Thailand, Burmese, Myanmar, China, Ceylon, and some other countries where Buddhism is being opted or is being lived by people in the mass. They are also coming to that place, and this is not less than Makkah for them. So it has a great significance, very well connected. Nowadays it has good connectivity, good roadways, railways, as well as obviously one airport is also being developed, international airport, to reach this place from any corner of India or any corner of our world. Apart from this, for Jain, the origin of Jain is also the epicenter of Bihar. Vaishali is the epicenter for Jainism. For the 24th Tirthankar of Jain sect, Mahavir Jain, his birthplace is Vaishali. Basukund is the specific place,
and Vaishali is the place. And obviously he got enlightenment at Parasnath. There is a Dijupalika river is there, and under the tree of Sal, and then he got enlightenment. But at the last moment of his life, he lived. He was in Parasnath. He was in Parasnath. So there is a temple. Jal temple is there, and every Deepavali, it is being celebrated very greatly or in the large scale. Apart from that, ecotourism, there is a scope of ecotourism. Tourism is also there. Numbers of rivers is there. The several project basing upon rivers is there. They are like Gandak project, Budi Gandak project, Kosi project, like that. And so apart from this, some hot springs are also there. In Rajgir, there is 7 hot springs are there. And some hot springs are also in Munger district. Historically, obviously, apart from Jainism and Buddhism, there Bikramshila University is there, one of the old universities near Bhagalpur, and Nalanda University is there, and some ruins of Nalanda University is there. Some or monumental structure like Sher Shah's tomb is there. And these are places of tourist interest. So obviously the thing is, even though having much, Bihar has much scope or potential for tourism, but it is not developed in that aspect. So for the development, good road connectivity is required, good train connectivity. Obviously, airways should also be there, is required, and apart from for rehabilitation or for good hotels, good cuisine like fooding sources should also be there. These are the things which should be developed for enhancing the tourism of that state. So there is a lot of scope, and I will find out the further what I can do for the enhancement of the tourism in Bihar. So Bihar I have considered as a case study, sir, and under geography tourism subjects. Tell about your research methodology. Pardon, sir? Research methodology. आप कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो? Sir, obviously I will go certain places of tourist interest, and I will find out I will collect the data regarding how many tourists are coming, and how much if proper arrangement is proper infrastructure is being provided to them, then how much it can enhance, and economically what its value will be. Apart from that, I will apart from data, obviously if requires, I will take the use of some technology like GIS and some other things, and if required, then I will go. There are certain centers are there. Tourism center, I will go and study. I will collect the data from them also, and whatever the scope will be there, and for the development of tourism, that I will explore, sir. ठीक है. अब इसमें तो आपके जो गाइड है ऑलरेडी उनका इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है. Yes, sir. जो पर्यावरण अपना पर्यटन होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो उनका जो नॉलेज है, Yes. उसका आपको तो उपयोग होने वाला है. Definitely. इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है. आप उसमें अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है. तो आप अभी इस काम को आगे बढ़ाते हुए
जो जो कुछ बात आपके पास डाटा के रूप में आने वाली है, उसको एनालिसिस जब करेंगे, उस एनालिसिस के ऊपर जो आप कंक्लूजन निकालने वाले हैं, उस कंक्लूजन को आप जब निकालेंगे तो ये जो आपने जो प्रॉब्लम्स हैंड आउट किए हैं, उसको सॉल्यूशन में लाने के लिए आप वो जो कंक्लूजन है वो कहाँ भेजेंगे? किसी ना किसी को पास भेजना पड़ेगा, तो कहाँ भेजेंगे आप उसको? Sir, obviously I will submit to my university. Apart from that, Yes. I will publish in the newspaper, in journals, in the form of journals, Okay. and I will try to attract the attention of the Bihar state, and if required, then central government also towards these findings, that how, because the growth of a region is the growth of the nation. So, by any corner, if I am sitting and doing some good thing or enhancing the economy of that sector, that field, then automatically it will give the overall impact on the national scenario. Sir. So, by journals and by publications, I will try to convince government also. I will try to communicate government also, so that they can, by adopting them, they can bring a better perspective for the tourists and for the economy of that state. ये बिहार, आप प्रॉपर बिहार के हो गए? Yes. तो अदर स्टेट के लोग बिहार के बारे में ना थोड़ा असुरक्षितता समझते हैं। Yes, कुछ sir. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहार अगर जाऊंगा तो कुछ मेरे साथ में Mishappening हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, मतलब बिहार अदर जान तो दूसरे स्टेट के लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है। Yes. तो ये भी आपके रिसर्च का एक, मुझे ऐसा लगता है कि हिस्सा होना चाहिए कि लोग क्या Definitely, सोचते हैं sir. बिहार के Yes, टूरिज्म के yes, बारे sir. में। Thank you, sir. Obviously, I have living away from Bihar since last 30 years, 25 to 30 years. I realized the same thing, sir. I felt that, but I forgot to mention this in my discussion, sir. But you brought that obviously this aspect in my notice. So definitely, I will present such a way that it will be trustworthy, and whatever the trust deficit is there, and that for the name of Bihar or for the name of Biharis, whatever, so that trust I will try to bring back, sir, in my research, through my research work, sir. इस पर फोकस कीजिए। Yes. जो अदर स्टेट के लोग हैं ना, उनका जो अभिप्राय है बिहार के बारे में, बिहार के टूरिज्म के बारे चेंज में होना चाहिए। Yes. नहीं, वो क्या है? Obviously, वो sir, क्या है? if अगर ये अगर change- ये चेंज होने के लिए आप जो सुझाव बताएंगे, Yes. वो आप उस पर आप वो तो आप चेंज कर नहीं उसके सकते। लिए फिर कुछ, मतलब अगर एक्चुअली में कुछ पोजीशन वैसी है तो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा हाँ। क्या? Yes. हाँ, Yes. तो बहुत सारे पोटेंशियल हमारे पास होती है, जैसे कि बिहार में है, आप बता रहे, तो वो पोटेंशियल बाहर स्टेट के लोगों को, बाहर कंट्रीज के लोगों को भी वो उसी तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके बारे में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का Definitely, not once, sir. Frequently it required, because this is the qualitative change, sir. And a qualitative change doesn't come in one day, sir. And it takes time. तो टाइम लगेगा बहुत। Yes. और वो आप तो रिसर्चर हो, आपको खाली सुझाव बताने हैं। Yes. जो काम करेगी वो तो गवर्नमेंट करेगी या फिर वो एनजीओ करेगी। Yes, sir. अच्छा, हाँ। रिसर्च है, हाइपोथेसिस का है। हाइपोथेसिस क्या है? त्याच्यावर आपका काही डिस्कस झालं नाही। आमचा ऍक्च्युअली विषय होता Obviously, sir, research Central hypothesis is the South central thing. Man, obviously, without that we cannot move further. But yet to discuss this, sir. आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। मदर टंग क्या है? So Hindi is. ये पीपल बोले आप या पीपल? Sir, I'm pronouncing like this. People. Sir. व्हाट इज पीपल या पीपल? पीपल लोग बोलते हैं, लेकिन मैं पीपल बोला हूँ। स्पेलिंग क्या है? POPLE। तो पीपल अलग होता है। पीपल बच्चे होते हैं, सर। और मुझे ये लगा कि आप वही थोड़ा सा वाया होगा, सर। नहीं, वो तो- ठीक है, कोई ऐसा
आप बैठिए. थँक्यू. तर आताच या ठिकाणी आपल्या कोकण विषयाचे संशोधक होणार यांनी आपलं सेमिनार या ठिकाणी प्रेझेंट केलेलं आहे आणि उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांच्या अनुषंगाने एक चांगली चर्चा त्यांनी घडून आणलेली आहे. त्यांचा जो विषय आहे तो अत्यंत व्यापक आणि दुर्गामी असा विषय आहे आणि या विषयाच्या संदर्भात त्यांना निश्चितच आमच्या लांजेवार सरांचं चांगलं मार्गदर्शन लाभणार आहे. कारण लांजेवार सरांनी सुद्धा त्यांच्या PhDच्या संदर्भाने जो विषय निवडलेला होता तो पर्यटनाच्या संदर्भानेच होता आणि पर्यटनावर त्यांचा जो हातखंडा आहे तो मी स्वतः अनुभवलेला आहे. म्हणून मला खात्री आहे त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये मोनाल यांचं हे जे संशोधनाचं काम आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीनं सादर होईल आणि त्या संशोधनाच्या माध्यमातून जे काही शिफारशी विद्यापीठ स्तरावर जातील, शासनाच्या स्तरावर जातील, त्या सगळ्या शिफारशी निश्चितच विचाराधीन घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असं मला एक या निमित्तानं विश्वास व्यक्त करावासा वाटतो. आजच्या या सेमिनारसाठी अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहिलेले आमच्या महाविद्यालयाचे इतिहास विभाग प्रमुख आमचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बिहान तनपुरे सर यांनी अध्यक्ष समारोप करावा मी अशी त्यांना विनंती करतो. त्यांचं नाव आहे मृणाल कमल. कमल नाही. कमल ना, नाही. सरनेम आहे. सरनेम तर ते आपले नाव म्हणूनच पकडलं. कमल नयन कमलच नाव आहे त्यांचं. नयन सर. कमल नयन नावाचे एक खूप मोठे व्यक्ती होऊन गेले. मराठी समजते का? हां, yes. समजतं. ते नक्कीच मला माहिती आहे. Yes, yes. कमल नयन कोण होते? कमल नयन मतलब सामासिक पद है सर. कमल नयन नाम के एक बहुत बड़े हस्ती हो गए. ये सर कमल नयन बजाज बोल करके थे. कमल नयन बजाज वर्धा से आते हो Yes. और महात्मा गांधी के साथ उनका बहुत जी, रहा. उनके स्टूडेंट जैसे थे, डिसाइपल जैसे थे वो. वो जो झोपड़ी है ना महात्मा गांधी जी. की, वो उन्होंने बना के दी. तो उसका सारा खर्चा उन्होंने उठाया. वैसे तो माल भी बना के देते लेकिन उनको हट चाहिए थी जी. और वो भी बिल्कुल वो बांस की बनाई हुई थी. तो उसको मतलब 1 लाख खर्चा आया था उस समय. तो वर्धेचा? वर्धेची कुठे? बापुटी सेवाग्राम की. तो सब खर्चा उन्होंने उठाया था. कमल नयन तो बजाज. पूर्ण एरिया बनवायला आला असेल. तो बहुत बड़ी हस्ती थी. तो आपका नाम सुन के उनकी याद आ गई. रहा मृणाल, वो तो हमारे महाराष्ट्र में फर्स्ट नेम रहता है मृणाल. मतलब क्या होता है उसका? सर कमल का डंठल होता है एक्चुअली. मृणाल का मतलब कमल का डंठल. हाँ, तो आपने आपके पिताजी ने वो सब नाम कमल नयन और मृणाल सारे मतलब जुड़े हुए हैं. हम आशा करते हैं कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं. क्योंकि आप कमल है, कमल में नयन आया गया और उसकी डंडी भी आ गई. तो आप सारे के सारे भाजपा में मत जाओ. किसी से मतलब जस्ट सर जो वैसे Part of joke. यस सर. तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है. तो सर ने जो बताया वो उसके कंसर्न में मैं Yes, sir. बताऊंगा आपको कि अब हमारे महाराष्ट्र में एक लेखक और एक टीचर थे, बड़ी हस्ती थी, सानी गुरुजी. उनका कहना था कि महाराष्ट्र के लोगों ने बिहार का स्टडी करना चाहिए, गुजरात का स्टडी करना चाहिए और भाषा भी सीखनी चाहिए. आज जो महाराष्ट्र में माहौल बनाया गया है वास्तव में ऐसा है नहीं. प्रोपागंडा होता है और Yes. बहुत गलत प्रोपागंडा होता है. सब्जेक्ट ये था कि हिंदी अनिवार्य कर दी गई है पहले से और कुछ तत्वों का मानना था कि अनिवार्य मत रखिए, इसको एक इलेक्टिव के रूप में रखिए और मराठी अनिवार्य होनी चाहिए ये. लेकिन इसका प्रचार इस तरह से किया गया कि भाई हिंदी वालों का हम अपोज कर रहे हैं महाराष्ट्र में. यही दिखाया गया पूरी दुनिया में, यानी कि महाराष्ट्र को अपना बदनाम कर दिया गया कि आपको यहाँ आने के बाद हिंदी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी. ये तो पॉसिबल नहीं होता. आपके 13 साल के इस महाराष्ट्र के निवास के अनुभव में आपने कभी सुना कि आपको किसी ने हिंदी बोलने के लिए मना किया और मराठी में भाषा करने के लिए जबरदस्ती की? एक उदाहरण अगर है सच्चा तो
तो बताइए आप क्या ये ऐसा मैं है? ये कहता हूँ सर कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का अगर रीजनल लैंग्वेज आप अडॉप्ट करते तो वो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। वो मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लोगों से जुड़ाव होता है। मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा अनुभव प्रतीत हुआ है क्या महाराष्ट्र में? जबरदस्ती हुई नहीं, क्या? मेरा लोग- साथ में, सच्ची बात नहीं, है। लोगों का ऐसी मानसिकता नहीं तो ये है ना? प्रोपागेंडा जो है ना, ये प्रोपागेंडा क्या करता है कि महाराष्ट्र के टूरिज्म पर बहुत बुरा असर करता है। यहाँ आने के बाद हमें हिंदी बोलनी पड़ेगी या मराठी बोलनी पड़ेगी, तो यही सेम हमें नहीं लगता। हमें तो अभी ऐसा ही लगता है कि बिहार जाने के बाद हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो मतलब वो हेट करेंगे महाराष्ट्रियन लोगों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसा ये आपको मालूम है, लेकिन सर ने जो बोला तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो टूरिज्म के लिए बहुत, क्योंकि टूरिज्म क्या होता है बाहर के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा असर करता है। अब हम कश्मीर में नहीं जाएंगे, 2 साल तक नहीं जाएंगे। हालांकि ये बात होती है कि एक हमला होने के बाद बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी बढ़ती है जाती और बहुत सेफ होता है। मतलब अगर घूमने जाना है तो तब जाओ जब हमला हो गया है। होने के बाद 1 साल 2 साल बहुत अच्छा रहता है। बाद में जब हम भूल जाते हैं सब वो ऐसी घटना होती है। तो ये जो भ्रम है वो निकालने के लिए आपके रिसर्च के माध्यम से कोशिश करेंगे, ये हमें आशा है। और हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आप रिसर्च करें और बहुत जल्दी आप डॉक्टर बने और हमारी पंक्ति में आके बने। आज हमारे स्टूडेंट कमल घोड़ा, उनका जो कोर्स वर्क था, वो कोर्स वर्क में जो 5 मॉड्यूल्स है उसमें आखिरी का मॉड्यूल सेमिनार, और जो सेमिनार टॉपिक है उनका वही जो उनका रिसर्च टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है। उनका जो टॉपिक ये रिसर्च टॉपिक है वो है बिहार में पर्यटन और बिहार का एक केस स्टडी है वहाँ की। तो जो भी वहाँ के जो खास रीजन बहुत बड़ा है, मैंने उनको भी बोला था कि आप इतना बड़ा रीजन मत लो, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, मुझे जो बड़े स्टेशन है, जो प्लेसेस है वो लेंगे और वहाँ पे जो कुछ भी आने वाले पर्यटक है वहाँ होने वाली जो प्रक्रिया है, क्रियाविधि है, वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन और बाकी हम जब वो रिसर्च करते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट आती है उससे कोई पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वहाँ जो इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट होती है, इसके लिए जो रोजगार बढ़ता है और बहुत सारे जो ये कार्य है वो भी चलते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा वाले हो गए, कोई होटल्स हो गए, बॉडी हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी अच्छे हो सकते हैं। और वो होने के लिए और कुछ जो ज़रूरत है वहाँ जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स को ये रिसर्च से ढूंढेंगे, निकालेंगे और उस पर अच्छा काम करने वाले हैं। आज ये सेमिनार के लिए आपके ये सेमिनार के अध्यक्ष हमारे प्रभारी प्राचार्य सर या तनपुरे सर, इसी के साथ IPSC के मेंबर और रिसर्च डेवलपमेंट सेल के भी चेयरमैन हैं, तो उसके साथ डॉक्टर BR लांडे सर मराठी विभाग प्रमुख है और रिसर्च गाइड भी है, डॉक्टर BR दामोदर सर ये भी रिसर्च गाइड है। आप सभी का और गुणा सर इनका भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। और हमारे डॉक्टर मुंडे सर लाइब्रेरियन ये भी यहाँ उपस्थित है, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो हमारा सेमिनार था ये भी खत्म।